Hello dear student, I am Pratibha Bhagat, your course advisor of diseases of field and horticulture crops and their management. Today we will discuss about the diseases of rice and their management. So this is a very first topic which describe the diseases of rice and how to manage this. First we will discuss about the importance of rice in our life and which kind of diseases affect the rice and their yield. So let's start with first slide. In introduction part, rice is a widely staple food grown in over 100 countries. It is consumed by regularly and primary source of protein, good source of energy, carbohydrates, calcium, iron and thiamine, which is compared to maize, wheat and potato, means the all nutrition we can gain by the rice as compared to maize, wheat and potato. India is a leading country for rice production in terms of area and also in Chhattisgarh, means Chhattisgarh widely area is covered by rice cultivation. It is also very important and widely grown all over the Chhattisgarh. Many farmer families are depending on rice cultivation so they can earn profit from the markets. So for farmers it is very important to produce healthy and good quality of rice, but due to many diseases their production are getting low, so it's directly cause the economic losses to their family and to their economic health, which have to be controlled, and it is need to be controlled to skip the losses. So there are some important diseases of rice. In list you can see that this list by prepared by your syllabus according to your syllabus, and we have to study diseases of fungi, bacteria, virus and disorder. Fungi means you in last classes you all know this, what is this pathogens. These all are a pathogen which can cause diseases and according to their classification there are so many families, classes, genera who are produce different kind of diseases. So first I like to tell you the diseases of fungi. So in your according to syllabus there are 4 diseases of fungi, but in actual there are so many diseases who affect the rice cultivations, but this list is according to your syllabus. So sorry, less. First is blast. Blast is caused by Pyracularia oryzae. The next one is brown spot, which is caused by Helmintosporium oryzae. Next is sheath blight. Sheath blight is caused by Rhizoctonia solani. The next one is false smut. False smut is caused by Astilaginoidea varans. So these are very important diseases in your syllabus, and you have to remember all the causal organism, which is very important. So ये थे आपके फंगस के डिसीजेज. नेक्स्ट है आपका डिसीजेज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया in bacteria diseases there is only one disease, which is bacterial leaf blight, and that causal organism is Xanthomonas oryzae, Pathowar oryzae. The next one is virus, diseases of virus, which is the name is Tungru. The common name is Tungru and it is caused by complex virus. It is a complex virus disease by RTBV and RTSV. They both are different kind of virus strain, and they both is very important to cause the disease. In absence of one virus, it is impossible to cause the Tungru disease. So next one is disorder, Khera. Khera is a disorder, and disorder is, I told you in the last semester that disorder is a different from disease. Disease is a biotic causes, but disorder are abiotic causes, which is favors by environmental effect or maybe deficiency of nutrient. So Khera is a deficiency of nutrient which is caused by a zinc, means जिंक की कमी से खैरा रोग फील्ड में देखने को मिलता है. तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट लिस्ट राइस के, जो कि हमें इस सेमेस्टर में राइस के डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, और इन सब के कॉजल ऑर्गेनिज्म को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइस एक ऐसा क्रॉप है जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और IGKV की सिलेबस में भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम में राइस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है. और राइस के डिसीजेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि केवल इन
जो सिलेबस में आपको ये स्टडी इनके अलावा ही नहीं, आपको एज ए जनरल आपको और भी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कल को आप कहीं किसी फार्मर के पास जा रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि ये गिन के कुछ 6-7 ही डिसीज़ आपको देख का सामना ही करना पड़े, हो सकता है कि आपको और भी डिसीज़ की प्रॉब्लम आ सके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्लास्ट से। ब्लास्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म था पायरिकुलेरिया ओराइजा, और जो इसका सक्सेसिव स्टेज है वह होता है मैग्नापोर्थे ग्रीसिया। यानी कि हर एक पैथोजन का दो स्टेज होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल स्टेज और दूसरा होता है सेक्सुअल स्टेज। तो जो इसका एसेक्सुअल स्टेज है वह है पायरिकुलेरिया ओराइजा, और जो इसका सेक्सुअल स्टेज है वह है मैग्नापोर्थे ग्रीसिया। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सिम्टम से। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि यह बहुत सारे एरिया में रिपोर्ट किया गया, ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली इन तमिलनाडु में। और यह जो इस पैथोजन है यह कम से कम 30 से 61% तक ये लॉस कर सकता है, और इन सीवियर केसेस जो लॉस है वह 70 से 80% तक मापा गया है, रिपोर्ट किया गया है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिम्टम्स। तो ये जो सिम्टम्स है जो फंगस है वह क्रॉप को सीज़न में किसी भी स्टेज पे अटैक कर सकता है। हो सकता है वह नर्सरी में सीडलिंग हो या फिर मेन फील्ड हो, तो ये जो फंगस है वह क्रॉप के किसी भी स्टेज में अटैक कर सकता है। और जो इसका टिपिकल सिम्टम्स है वह मोस्टली लीफ पे, लीफ शीट, रैचेस, नोट्स एंड इवन इन द ग्लूम्स में भी देखने को मिलते हैं। ब्लास्ट को मोस्टली अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स 3 तरह के ब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। पहला होता है लीफ ब्लास्ट, दूसरा होता है नोड ब्लास्ट एंड थर्ड होता है नेक ब्लास्ट। तो लीफ ब्लास्ट मतलब लीफ में ब्लास्ट के सिम्टम्स दिखाई देना। लीफ में क्या होता है, और सबसे ज़्यादा जो ब्लास्ट है वह आपको लीफ में ही देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जो लीफ होता है, लीफ में स्टार्टिंग में तो एक स्मॉल वाटर सोप ब्लूइश ग्रीन स्पेक्स दिखाई देने लगते हैं। वाटर सोप पैचेस मतलब जब जो मीन्स आपने कई बार फील्ड में जितने भी कई लोग हो सकता है राइस के फील्ड अक्सर रेगुलर देखते रहे होंगे, कई लोग फार्मर के आप लोग से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स है वो एक स्मॉल वाटर सोप ब्लूइश ग्रीन कलर के स्पेक्स के रूप में दिखाई देता है। मतलब छोटे छोटे उसमें स्पॉट्स बनते हैं जिनका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, जिन्हें हम वाटर सोप पैचेस भी कहते हैं। धीरे धीरे ये पैचेस जैसे जैसे डिसीज़ डेवलपमेंट करने लगता है, यानी कि स्पोर मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, माइसीलम बढ़ने लगता है, तो जो ये कैरेक्टर है यानी कि जो लीजन है, हम इसे स्पॉट भी कहते हैं और लीजन भी कहते हैं, बट टेक्निकल टर्म पे हम इसे कहते हैं लीजन। तो जो लीजन है जैसे जैसे साइज़ में बढ़ने लगता है, जो इसका मेन साइज़ है वो होता है स्पिंडल शेप का। स्पिंडल शेप को हम सिंपली कह सकते हैं किस तरह का होता है, बोट शेप है। जैसे आपने नाव का आकार देखा होगा, नाव आकार का, या फिर बुल के आई के समान, बुल आई के समान। मोस्टली जब भी आपको कोई भी आप अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम में वाइवा में बैठते हैं तो आपसे एक्सटर्नल पूछेगा कि ब्लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, तो आपको तब बताना है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वह स्पिंडल शेप और बोट शेप और बुल आई शेप। तो ये तीनों ही आंसर सही हैं, बट हो सकता है जो एक्सटर्नल है वो स्पिंडल शेप सुनना चाहता है, कई लोग बुल आई शेप सुनना चाहें या बोट शेप। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग ये तीनों टर्म्स याद रखें। तो ये था लीफ पे बनने वाले स्पॉट्स या लीजन। तो ये लीजन जैसे जैसे डिसीज़ डेवलपमेंट हो जाता है, ये लीजन क्या करते हैं, आपस में एक लीफ में बहुत सारे लीजन बने होते हैं, और ये लीजन आपस में साइज़ में बढ़ने लगते हैं और आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो मर्ज होने से एक लार्ज एरिया पूरा लीफ का ड्राई हो जाता है, और ड्राई होके वह मर जाता है, यानी कि डेड हो जाता है। तो ये था लीफ ब्लास्ट। इसके बाद हम देखेंगे नोड ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट यानी कि जहाँ पे बीच बीच में नोट्स बने होते हैं प्लांट में, लीव्स के ऊपर, आप प्लांट में आप देखे होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पे नोड वाले पोर्शन में क्या होता है, जो नोड पे और नोड के आसपास के एरिया में एक इरेगुलर ब्लैकिश एरिया इनलार्ज बढ़ने लगता है या फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे सड़न होने लगती है। सड़न की वजह से जो नोट के ऊपर का पोर्शन है, यानी कि नोट से स्पेशली मेनली वह नोट से ब्रेक हो जाता है, और नोट्स के ऊपर जो प्लांट का अपर पोर्शन होता है, मतलब पेनिकल वाला पोर्शन, वो क्या होता है, अगर नोट टूट जाए तो उसमें पेनिकल नहीं रह पाता, यानी कि पेनिकल भी उस नोट के साथ, नोट के टूटने की वजह से पेनिकल नीचे गिर जाता है और उसमें किसी भी तरह का ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो जिससे इल्ड को लॉस होता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं नेक ब्लास्ट। अगर मान लीजिए नोड ब्लास्ट उसमें नहीं देखने को मिलता है और नेक ब्लास्ट देखने को मिलता है, तो नेक ब्लास्ट में क्या होता है, फ्लावर इमर्जेंस के टाइम में फंगस नॉर्मली पेनिकल्स में अटैक करता है। पेनिकल्स में जो लीजन बनते हैं वो ब्राउनिश ब्लैक कलर के लीजन बनते हैं जो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगते हैं। अगर ये अर्ली स्टेज में हो जाए, अर्ली स्टेज में लगने से क्या होगा कि जो आपका ग्रेन है वो पेनिकल्स में फिल नहीं हो पाएगा, यानी कि जो ग्रेन है वो चैफी रह जाएगा, उसमें किसी तरह आपने कई बार देखा होगा, इवन प्रैक्टिकल्स में फील्ड में आप जाते होंगे तो देखा होगा कि जो कई पेनिकल्स में क्या ब्राउन कलर का एक ब्लैकिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स बने रहते हैं, और जब भी उसको छुएंगे तो वो हमेशा चैफी होता है। चैफी यानी कि खाली होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका ब्लास्ट लग चुका है, तो ब्लास्ट लगने की वजह से उसमें आपका जो ग्रेन है वो फिल नहीं कर पाता। तो ये था नेक ब्लास्ट। इसलिए ये डिसीज़ अगर इवन लीफ ब्लास्ट तक ये उतना डैमेज नहीं करता, लेकिन अगर नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट हो जाए तो ये इल्ड को बहुत बुरी तरह से ही ख़त्म कर देगा। इसीलिए अगर हमें लीफ ब्लास्ट अगर सिम्टम्स हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें इसका मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज़ यह हमारे इल्ड को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम ईटियोलॉजी में जो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है वह पहली बार कवारा के द्वारा डिस्कवर किया गया था, यानी कि डिटेक्ट किया गया था। तो मेनली जो पैथोजन है वह एसेक्सुअल स्टेज में माइसीलियम और कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। माइसीलियम और कोनिडिया का स्ट्रक्चर आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, पर लास्ट क्लास यानी कि आपके फर्स्ट ईयर में माइसीलियम क्या होता है, कोनिडिया क्या होता है। लेकिन हर पैथोजन का मीन्स हर फंगस का अपना अलग अलग एक कैरेक्टर होता है, यानी कि उनका फंगस का जो माइसीलियम है उनके शेप साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, इवन कोनिडिया का भी शेप साइज़ कलर में डिफरेंट हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं ब्लास्ट का जो माइसीलियम है उसका शेप कैसा होता है, वह एक तो हाईलाइन टू ऑलिविशियस कलर का होता है, ऑलिव थोड़ा लाइट ऑलिव कलर का है, बहुत ही लाइट, वो उसके माइसीलियम का कलर होता है। और जो माइसीलियम होता है वह सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट आप सब जानते हैं, यानी कि अगर माइसीलियम में बीच में एक दीवार हो तो वह होती है उसे कहते हैं हम सेप्टेशन। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिवाइडेशन ना हो तो उसे नॉन सेप्टेट कहते हैं। तो यह कैसा होता है, सेप्टेड होता है और हाईली ब्रांच, यानी कि माइसीलियम में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। कई माइसीलियम ऐसे हो सकते हैं, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो अगर मान लीजिए जिसमें कम नेटवर्क है वह कम ब्रांच होगा, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा है वह होगा हाईली ब्रांच। ये था माइसीलियम। और माइसीलियम से फिर प्रोड्यूस होता है आपका कोनिडियोफोर कैसा होता है, ऑल्विसियस टू सिलेंडर कलर, और यह क्लस्टर में पाया जाता है और सेप्टेड होता है। यह भी सेप्टेड होता है बिल्कुल माइसीलियम की तरह। और इन कोनिडियोफोर के टॉप पे बनता है कोनिडिया। कोनिडिया कैसा होता है, इसका कोनिडिया होता है पायरीफॉर्म का और या फिर ऑब्लिक वेट साइज़ का। पायरीफॉर्म में आप देख सकते हैं इमेज में कि जो इसका कोनिडिया है उसका शेप को हम कहते हैं पायरीफॉर्म। और जिसका आप टॉप पोर्शन देखेंगे, टॉप पे क्या है, वो समवॉट क्या है, थोड़ा सा नुकीला है, और मतलब पूरी तरह से पॉइंटेड नहीं है, वो थोड़ा सा पॉइंटेड शेप का बना हुआ, बट ऊपर पे वो इक्वल हो जाता है। और ये था आपका कोनिडिया। और मेनली जब सेक्शुअल स्टेज में कन्वर्ट होता है, जब कोनिडिया, इसमें देख सकते हैं जो कोनिडिया होता है वह कैसा होता है, हाईलाइन होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और 3 सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेल्स कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें 3 टाइप के मतलब उसमें 3 डिवाइडेशन है, तो उसे बोलते हैं हम 3 सेल। अब देखते हैं हम उसका सेक्शुअल स्टेज, जिसे हम परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं। परफेक्ट स्टेज में फंगस को हम कहते हैं मैग्नेपोर्थी ग्रीशिया, जिसमें वह क्या करता है, पेरिथीशिया प्रोड्यूस करता है। आपने देख चुका था कि फंगस के डिफरेंट सेक्शुअल बॉडीज़ होते हैं, जिसमें से एक होता है पेरिथीशिया। जो पेरिथीशिया क्या करता है, एस्कोकार्प प्रोड्यूस करता है। एस्कोकार्प में क्या होता है, आपका एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है। तो यह जो एस्कोस्पोर होते हैं वह होते हैं हाईलाइन, फ्यूजिफॉर्म, 4 सेल्ड एंड सिंगली कर्व। तो ये होता है पेरिथीशिया। और जो पैथोजन होता है वह केवल अपने सिम्टम से प्लांट को डैमेज करता है, इसके अलावा कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, जिनका नाम है अल्फा पिकोलिक्निक, पायरिकुलेरिन एंड पायरिकुलोल। ये तीनों ही जो टॉक्सिन है वह प्लांट के
फिजियोलॉजी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए डिसीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिसीज़ साइकिल। जैसे कि डिसीज़ साइकिल में जो आपका मेन 2 पॉइंट है वह होता है प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, वो मेनली किसके थ्रू होता है, वह होता है माइसीलियम और कोनिडिया के कारण। पर अभी माइसीलियम और कोनिडिया आते कहाँ से हैं, तो जो प्राइमरी अगर मान लीजिए कि अगर सीड इन्फेक्टेड है, मतलब उसमें ऑलरेडी माइसीलियम या कोनिडिया प्रेजेंट है, तो अगर हम इस तरह की सीड को यूज़ करते हैं तो डिसीज़ क्या होगा, वो फिर से नए सीज़न में आ जाएगा। तो जो मेनली प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम है वह होता है माइसीलियम और कोनिडिया, जो कि इन्फेक्टेड सीड में प्रेजेंट हो या स्ट्रॉ में, यानी कि हम प्राइमरी इन्फेक्शन हम इसे सीड बॉर्न कहेंगे। कभी इन्फेक्शन जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन है हम उसे या तो सीड बॉर्न या तो वो सीड बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न होता है, मतलब सीड में प्रेजेंट रहेगा तो सीड बॉर्न, सॉइल में प्रेजेंट रहेगा तो सॉइल बॉर्न, और थर्ड होता है एयर, यानी कि एयर करंट्स के रूप में अगर एयर्स में वो अवेलेबल रहता है, जैसे कि मोस्टली वीट का रस्ट, जो कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स है। तो यह था प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है, जो सीड्स और जो स्ट्रॉ या फिल्म में पड़े हुए जो स्ट्रॉ हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, वो फिल्म से अगर रिमूव नहीं किए गए तो वहाँ पे वह पैथोजन के माइसीलियम और कोनिडिया वो वहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में रहता है, और जैसे ही नई क्रॉप लगती है फिर से वह नए सीज़न में आ जाता है। और सेम अगर इन्फेक्टेड सीड भी यूज़ करेंगे तो वह नए सीज़न को अफेक्ट कर देगा। और इसके अलावा भी इसके कोलेक्ट्रल होस्ट होते हैं जो कि पैथोजन को नेक्स्ट सीज़न तक कैरी करते हैं, जैसे कि पैनिकम रेपेंस, डिजिटेरिया मार्जिनिटा और एक्सेट्रा। सो ये था आपका प्राइमरी इन्फेक्शन। अब जो नेक्स्ट है आपका होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि इस पैथोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों ही होते हैं। कई पैथोजन ऐसे होते हैं जिसमें केवल प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, मतलब जिनका डिसीज साइकिल एक ही इन्फेक्शन में चलता है, यानी कि एक बार इन्फेक्ट हो गया तो हो गया, फिर वो दोबारा इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब वो ऑलरेडी फील्ड में एक बार इंट्रोड्यूस होना। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स अब उस फील्ड में ऑलरेडी जब वो आ चुका है, कुछ प्लांट्स को वो इन्फेक्ट कर चुका है, तो वह कुछ प्लांट्स से और प्लांट्स को इन्फेक्ट करने का जो मेथड है या जो जरिया है वह होता है सेकेंडरी इनाकुलम। और ये जो डिसीज साइकिल है यह बहुत ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। एक पैथोजन जो डिसीज साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि वो अपने एक ही टाइम पे वो बहुत सारे कोनिडिया प्रोड्यूस करेगा, जिससे वह सेकेंडरी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका जो मेनली है वह एयर करंट्स के थ्रू होता है। एयर करंट्स के थ्रू जो कोनिडिया क्या होते हैं वो ट्रैवल करके जो पास के फील्ड हैं या पास के प्लांट हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये होता है डिसीज साइकिल। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि एयर करंट्स में ये कोनिडिया आते कहाँ से हैं। तो कोनिडिया जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें ही क्या होता है, मान लीजिए अगर उसमें ब्लास्ट लग चुका है तो वहाँ से वो एयर करंट के थ्रू उनका पार्ट, मान लीजिए कोई सिम्टम्स से स्पोर माइसीलियम यानी कि कोनिडिया अगर एयर के कांटेक्ट में आके उसे एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो वह ट्रैवल करके अन्य प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो यह था डिसीज साइकिल। अब इसके बाद देखेंगे हम फेवरेबल कंडीशन, यानी कि इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट डेंजरस फेवरेबल कंडीशन है वह है एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, यानी कि नाइट्रोजन का एक्सेस यूज़ से भी ये डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्योंकि अगर हम जब एक्सेस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, यानी कि फील्ड में फिर क्या होता है, फील्ड में ज़्यादा ग्रीन लीव जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रीन होते हैं, जो कि पैथोजेंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें नाइट्रोजन को उतने ही अमाउंट में डालना है जितनी इसकी ज़रूरत हो, यानी कि उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में। उसके अलावा इंटरमिटेंट ड्रिजल्स यानी कि जो बीच बीच में हल्की बारिश होती है, वह हल्की बारिश के कारण भी ये डिसीज़ फेवरेबल हो जाता है, यानी कि इसका स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। इसके बाद क्लाउडी वेदर हो गया, आपका हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे कि 90 से 99%, और रात के टाइम में इसका कम टेम्परेचर होना 15-20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ होना, और रेनी डेज़ के अलावा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ड्यू, क्लाउडी वेदर और स्लो विंड मूवमेंट क्या करता है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल होस्ट, ये सारे ही इसके फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट हम आप पॉइंट देख रहे हैं फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मीन्स इस डिसीज़ को हम आने से पहले ही हम उसको फॉरकास्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। इन मॉडल्स में मेनली क्या होता है कि जो आपका जो मॉडल है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करता है। मीन जैसे कि टेम्परेचर, इसका फील्ड का टेम्परेचर देखना,
और या फिर उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखना, विंड की कैपेसिटी कितनी है, तो ये सब को वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वो डिसीज़ के आने के चांसेस को बताता है। ये था फॉरकास्टिंग। और फॉरकास्टिंग में डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कि ब्लास्ट हो गया, पैरिकुलेरिया, प्रीव्यू, ब्लास्टम, पी ब्लास्ट और इपीब्ला। ये डिफरेंट फॉरकास्टिंग मॉडल्स हैं जिसे हम फॉरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लास्ट है इसका मैनेजमेंट में हम देखेंगे पहला यूज़ ऑफ सीड फ्रॉम डिसीज़ फ्री क्रॉप, यानी कि हमें ऐसे सीड्स का यूज़ करना है जिसमें कि डिसीज़ ना हो, या फिर उससे जो पहले की क्रॉप है वो डिसीज़ फ्री हो, तो उनका जो सीड होता है वह भी डिसीज़ फ्री होगा। तो ऐसे सीड्स को हमें सोइंग के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट है ये जो है ये कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। रेसिस्टेंट वैरायटी जैसे कि टिकाना, श्रीलंका, फाल्गुना और विजया, रत्ना, स्वर्णमुखी, ये सब, या श्रवानी, डिफरेंट रेसिस्टेंट वैरायटी को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कोलेट्रल होस्ट हैं या वीड्स हैं उनको फील्ड से रिमूव करना और उनको डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट, स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, यानी कि जो नाइट्रोजन है उनको स्प्लिट्स में, जैसे कि आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा कि हम नाइट्रोजन को 3 स्प्लिट्स में अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह से इसे डिफरेंट स्प्लिट्स में अप्लाई करना है। उसके अलावा भी उतना ही नाइट्रोजन यूज़ करना है जितना कि एक राइस के फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये था आपका कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम देखते हैं केमिकल कंट्रोल में क्या है। एक तो आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, कैप्टन, थायरम, कार्बेंडाजीम, कार्बोक्सिन या ट्राईसाइक्लाजोल का यूज़ कर सकते हैं। सीड को ट्रीट करने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए, 2 ग्राम पर केजी, यानी कि 1 केजी को 2 ग्राम डिफरेंट केमिकल से ट्रीट करना है। ये था सीड ट्रीटमेंट। अब सीड ट्रीटमेंट का नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन, इसके अलावा हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें देख रहे होंगे सेकंड लास्ट में कि स्प्रे द नर्सरी विथ कार्बेंडाजिम, जैसे कि यह डिसीज़ क्या नर्सरी में इन्फेक्ट कर सकती है, तो हमें नर्सरी में भी एक तरह से बचाव का या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेथड अपना सकते हैं कि कार्बेंडाजिम को 25 ग्राम और ईडीफेनफॉस को 20 ml फॉर 8 सेंट नर्सरी, यानी कि 8 सेंट नर्सरी एरिया में हमें इन केमिकल्स को इतने अमाउंट में ही यूज़ करना है जिससे कि डिसीज़ कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट है मेन फील्ड में स्प्रेइंग का। अब मेन फील्ड में स्प्रे करने के लिए भी हमें सेम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, बस इनका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ईडीफेनफॉस @0.1%, कार्बेंडाजिम @0.1% और ट्राईसाइक्लाजोल @0.6% और थायोफेनोनेट मिथाइल @0.1%। तो ये डिफरेंट केमिकल्स को उनके डिफरेंट सॉल्यूशन बना के हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये था केमिकल ट्रीटमेंट। अब इसके अलावा हमें इसका बायो कंट्रोल के थ्रू भी बायो के एजेंट के थ्रू भी हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी का 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड का ट्रीटमेंट करना है, यानी कि एक केजी में हमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज़ करना है। नेक्स्ट है सीडोमोनास फ्लोरेसेंस में हमें 1 केजी में 10 ग्राम सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज़ करना है। सीडोमोनास फ्लोरेसेंस क्या है, एक बैक्टीरियल एजेंट है और ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फंगल एजेंट है। तो इस तरह से यह हम सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो फील्ड है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की जो क्लोजिंग है उसको पास नहीं रखना, उन्हें दूर दूर रखना है। इसके अलावा हम बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिस अपना सकते हैं, जैसे कि SRI मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें एक तो प्लांट एक परफेक्ट स्पेसिंग में होता है और डिसीज़ का स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है, यानी कि अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी हो तो हम उस प्लांट को उस प्लांट से कांटेक्ट के आने में बचा सकते हैं। तो ये था ब्लास्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्राउन स्पॉट एंड बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ब्राउन स्पॉट एंड बैक्टीरियल ब्लाइट।